हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स एंड द नेम स्पेसेस. नेम स्पेसेस are also called the packages. Now comes to the first point, that is the modules. So a module is a container which holds a group of variables and subroutines and the public interfaces which can be used in a program. Every module has a public interface and a set of functions that I mentioned here. So if you want to use a module in your program, then we need a two type of statements, whether you can use a required statement or you can use a use statement in your program if you want to add modules. So now comes to the next point, that is the namespaces. What is the namespace? Namespace in a Perl, all the programming code or all the executable statements are automatically include in a namespace. Means the namespace contains every piece of Perl code. So means every single statement you wrote in your in your Perl script, it belongs to a particular namespace. Okay, so by default our namespace is main namespace. Main namespace is our default namespace. Okay, so the syntax of the namespace is the name scope resolutions variable. Here in a name place, you can place a name of your namespace, and here you can place a variable name in which you want to hold particular value. Okay. Next point is to switch namespaces. Suppose by default a user placed in the main namespace, and if you want to change its namespace and you want to switch it to another namespace, then you have to use a keyword, that is a package. Okay, so the syntax of including the package statement in your Perl script is the package keyword you have to use first, and then namespace name that you want to switch. Okay, it is the name of the namespace which you want to open. ओके, विच यू वांट टू ओपन. सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम एक मॉड्यूल को कैसे ऐड करेंगे अपने कोड में. ठीक है, ताकि हम नेम स्पेसेस का यूज कर सकें. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ. अगर हम इसमें हमें एक यूज करना पड़ेगा यूज स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर हमें मॉड्यूल्स ऐड करने हैं तो हमें यूज या रिक्वायर स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा. अगर हम ये नहीं ऐड करते तो एक्चुअली में हम मॉड्यूल्स नहीं ऐड कर पाएंगे, और मॉड्यूल्स ऐड नहीं कर पाएंगे तो हम पैकेजेस और नेम स्पेसेस का यूज नहीं कर पाएंगे. तो हमें यूज स्ट्रिक्ट यूज वार्निंग लगाना पड़ेगा. ओके, सो नाउ मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ $x से. जब हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो जो यहाँ पे हम माई से जो भी वेरिएबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेक्सिकल वेरिएबल्स. जो लेक्सिकल वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर्ड विद द माई कीवर्ड, एंड वो यूज करते हैं नेम स्पेसेस टू द सेपरेट फंक्शंस के लिए. ओके, तो इनका ग्लोबल नेम स्पेस नहीं होता, इनका सेपरेट नेम स्पेस होता है. तो सपोज आई एम राइटिंग वन मैसेज दैट इज हेलो. ओके, so this is the value of my x variable that is related to the separate namespace. Okay, separate function. So now I'm going to write a main namespace. So here I'm going to create a namespace, that is main scope resolution x. That is the syntax of our namespace, that is the name scope resolution variable name. So here the name, this is the namespace, or here's the variable, or I am putting any value in this namespace x variable, that is by. अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट करूंगी. सो मैं पहले प्रिंट करती हूँ अपना नेम स्पेस मेन $main
स्कोप रेजोल्यूशन x. ओके, सो नेक्स्ट मैं अपना जो सेपरेट फंक्शन जो हमारा डिफाइन हुआ था वो है $x. मैं इसको प्रिंट करती हूँ और इसको रन करके हम चेक करते हैं. अब आप देख सकते हो फर्स्ट मैसेज आया हमें बाय और सेकंड में मैसेज आया हमें हेलो. इवन वेरिएबल्स आर सेम. We used the x variables here and the another x variable here, but this x variable is belongs to the main namespace, but this x variable is doesn't belongs to any module or a namespace. Okay, so these two x are different, they are not same. This is the lexical variable and the namespace variable. So now if you want, I will give you a package demo how to create a package in program. Okay, so if you want to create a package, so or switch or you want to switch between the namespaces, then I'm creating one program. Strict, use warnings and use 5.010. You can also use the version you want, 5.12.3. okay, this is my current latest version. So if you want to create a subroutine, okay, because I told you before that modules are the collections of the variables, subroutines and the public interfaces. So I'm creating a one subroutine here. Creating subroutine. So what is a subroutine? Subroutine is a kind of a function. It's a kind of a function. Okay, it's a kind of function. So how to create? What are the syntax of creating a subroutine? So I'm creating. First you have to use the keyword sub, and then you have to write the name of your function. Suppose my function name is hi. Okay, so now I'm expanding this function. I'm here expanding this function. You don't need to use round brackets here. Okay, now I'm going to return it. Return this function. This functions to the namespace main. That is the default namespace. So this is the namespace. Now it will automatically go to the namespace main. Okay, now I want to switch the package. Okay, if you want to switch the namespace, okay, switch namespace from main to any other namespace. Suppose I'm creating another namespace that is called 2. Okay, this is the name of my namespace and this is the name of my default old namespace. Okay, so the 2 namespace I have to create. The first is the main namespace and the second one is the 2 namespace. So package namespace and the 2. So this is the syntax of switching the namespace from a main namespace to 2. So I have to write the package and the namespace name, that is 2. Okay, now अब ये हमने पैकेज क्रिएट कर दिया. अब हम इस पैकेज के अंडर हम एक सबरूटीन क्रिएट करेंगे जैसे हमने मेन के अंडर क्रिएट किया था. अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे पैकेज मेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो मेन नेम स्पेस में ही होता है. ठीक है, जब भी वो कुछ भी राइट करता है तो वो मेन नेम स्पेस में ही होता है, इसलिए हमें पैकेज नेम लिखने मेन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो ये फंक्शन है वो मेन नेम स्पेस के लिए ही है. बट यहाँ पे हम स्विच कर रहे हैं पैकेट को और हमने यहाँ पे एक 2 नाम का नेम स्पेस है उसको स्विच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक सब रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे सब. सपोज मैंने सेम नेम का ही फंक्शन बनाया है, सब रूटीन बनाया है. अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. हमने लिखा है रिटर्न
रिटर्न टू टू, ओके, रिटर्न टू टू नेम स्पेस। ये हमने सेव कर दिया, ये हमारा सब रूटीन क्रिएट हो गया। अब क्या है, हमें इस सब रूटीन्स को कॉल किया। अभी हमने आपको लास्ट जो अभी लास्ट जो प्रोग्राम कराया था उसमें हमने वेरिएबल्स का यूज करवाया था, यहाँ पे हम सब रूटीन्स का यूज करवाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, सपोज प्रिंटिंग मेथड यूज कर लो, मैंने से यूज कर लिया। तो अगर आप मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हो हाय, ओके, सो कॉलिंग में राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप से को यहाँ पे टू जो नेम स्पेस है उसके हाई फंक्शन को अगर आप कॉल कर, ठीक है, और आप बाय डिफॉल्ट अगर कोई हाई फंक्शन को कॉल कर, सो इन सिनेरियो में आप आउटपुट क्या आएगा, आप यहाँ गेस कीजिए कि क्या आउटपुट आएगा इन तीन सिनेरियोज में। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे मेन है, स्कोप रेजोल्यूशन हाई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हाई मेथड कॉल करो जिसका नेम स्पेस है मेन, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट आएगा वो सब रूटीन की रिटर्न वैल्यू आएगी। तो सब रूटीन हाई है, जो मेन का सब रूटीन है उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो मेन है, ठीक है। तो आउटपुट आएगा इस केस में मेन। इस केस में क्या आउटपुट आएगा, गेस करो कि अब यहाँ पे हमारा जो नेम स्पेस है वो स्विच हो चुका है, मींस टू है, और टू का जो हमारे पास हाई सब रूटीन है उसका जो वैल्यू है वो है टू, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा टू। इस केस में आप ध्यान दीजिए, इस केस में आपको सोचना पड़ेगा। अब हमने लिखा है से हाई लिखा है, तो अब मुझे आप बताओ कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा कि इससे पहले स्टेप में, इस स्टेटमेंट के पहले स्टेप में आप जिस नेम स्पेस पे थे वो नेम स्पेस आपका आएगा। तो इसमें आप जो आपका ग्लोबल, इस केस में जो आपका लोकल जो मेन स्पेस है वो आएगा। आपका इस केस में लोकल मेन स्पेस क्या है, 2, तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा इस केस में 2 आउटपुट। अब मैं एक पैकेज को कर रही हूँ स्विच, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्विच माय पैकेज टू मेन। व्हाई, क्योंकि जो हमारा पहले, अभी हम 2 पे आ चुके थे, हम 2 नेम स्पेस पे आ चुके हैं, हमें स्विच करना है पैकेज टू अगेन मेन नेम स्पेस पे, ओके। हमने अपना पैकेज सेट कर दिया कि अब हम नेम स्पेस पे हैं, उसी के सब रूटीन और फंक्शंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन, ओके। मैं क्या करती हूँ, मैं सेम ही स्टेटमेंट्स को कॉपी कर देती हूँ, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाली हूँ मेन, 2 और हाई के लिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसके आउटपुट क्या आएंगे। सो फर्स्ट वाले केस में क्योंकि हम मेन पैकेज से स्विच हो गए मेन नेम स्पेस में ही, तो मेन का हाई है, जो आंसर है वो है मेन, ओके। जो 2 है नेम स्पेस, 2 नेम स्पेस को हमने ओवरराइड किया है यहाँ पे और कॉल किया है, दैट इज 2, ओके। अब यहाँ इस केस में आप देखिए, इस केस में आपका मेथड क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा इस केस में। इस केस में हमारा जो एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे पैकेज ओवरराइड किया होगा उसी का नेम स्पेस यहाँ पे प्रिंट होगा, दैट इज मेन। सो हमने यहाँ पे क्या जाना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये हाई में मेन कैसे आया और ये हाई में 2 कैसे आया। तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि जब भी हम हाई मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, विद पर्टिकुलर नेम स्पेस, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो इस नेम स्पेस के रिस्पेक्ट में ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 का हाई था तो 2 प्रिंट हुआ, मेन का हाई था तो मेन प्रिंट हुआ। बट अगर हम विदाउट एनी नेम स्पेस किसी फंक्शन को प्रिंट करते हैं तो वो फंक्शन प्रिंट होगा जो पर्टिकुलर पैकेज के अंडर का फंक्शन है, मींस जो जिस नेम स्पेस में है वो पैकेज, ठीक है, उसका प्रिंट। तो इस केस में ये जो पैकेज था वो 2 था तो 2 प्रिंट हुआ। अब इस केस में जो पैकेज था वो मेन था, इसीलिए मेन प्रिंट हुआ। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।